Hello, hello, hello. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ یس سر. طاہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طاہر دا بولے میوٹ. طاہر تزان میں میوٹ کوا. طاہر ان میوٹ کرے. جی سر جی سر. بشارت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر. شکیلہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شکیلہ اپنے آپ کو ان میوٹ کرے. صحیح ہے سر، ابھی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. امیر اللہ آپ کو آ رہی ہے؟ شکیلہ اپنے آپ کو ان میوٹ کرے. اچھا سر صحیح ہے. ہاں. محمد طاہر آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کرے. ابھی آواز آ رہی ہے سر میری؟ آپ کو نام بتائیے کون ہے؟ محمد طاہر عتیق سر. ہاں ہاں بالکل. طاہر خٹک. جی 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 سر. جی سر. وسیم آپ کو آ رہی ہے؟ یس سر یس سر آ رہی ہے سر. شکیلہ آپ کو؟ جی جی سر ابھی آ رہی ہے. امیر اللہ آپ کو؟ امیر اللہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امیر اللہ امیر اللہ زیما. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. امیر اللہ آپ خود ہو سر. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہمارا کوآرڈینیٹر ہے امیر اللہ نا. ٹھیک اوکے سر. سر. اوکے. اب کتنی اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں؟ سر 6 آن لائن ہے سر، امیر اللہ کو مائنس کر کے. تو امیر اللہ تو بھی آن لائن ہے نا. سر وہ آپ ہیں سر. ٹھیک ہے نا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ کتنے آن لائن ہے. 7 ہے سر. اوکے جی 7 آن لائن. اوکے جی. تو یہ اب ہم سٹارٹ لے لینا. یس سر. جی سر. کوالٹی ډیره خراب ده. سلایډ دا کوالټي ډیره خراب ده. دیو ته زموږ سلایډز دي، سلایډز دیو ته په سکرین باندې. آپ لوگوں کو سلائیڈز نظر آ رہی ہے؟ نو سر. نو سر. نو سر. نو سر. شیئر کر. ایک منٹ صبر کریں، ہم شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلاسز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یس سر. جی سر ابھی سمجھنا اسٹارٹ ہوا ہے سر. یہ انٹرمیٹڈ کنیکٹیوٹی ہے نا. جی سر بالکل. جب ایج فوگ نہ ہونا تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے. بالکل سر. ابھی آپ لوگوں کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں؟ یس سر. یس سر. یس سر. گڈ. فائنائٹ آٹومیٹا. ہاں ہاں بالکل. یہ ریکارڈنگ شروع تو یہ فائنائٹ آٹومیٹا تو ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں دوبارہ اس کو ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگوں کا ایک فلو بن جائے نا. یس سر. ٹھیک ہے. بالکل سر. تو جس طرح کہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا سبجیکٹ ہے فائنائٹ آٹومیٹا 2، مطلب یہ ہے کہ ہم کمپوٹیشنل تھیوری ڈسکس کر رہے ہیں.
تو کمپیوٹیشنل تھیوری کی مین 3 برانچز جو ہے تو وہ کمپلیکسٹی تھیوری ہے اور دوسرا کون سا ہے کمپیوٹیبلٹی تھیوری اینڈ آٹومیٹا تھیوری. کمپیوٹیشنل تھیوری میں کمپیوٹیبلٹی تھیوری میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض اس طرح کے پرابلمز ہے کہ وہ کمپیوٹیبل ہے یعنی ڈیسائیڈیبل ہے اور بعض اس طرح کے پرابلمز ہے کہ وہ ڈیسائیڈیبل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر انڈیسائیڈیبل ہے. گڈ. تو بعض پرابلم کمپیوٹر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یعنی یس نو میں جواب دے سکتے ہیں اور بعض پرابلم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کمپیوٹیبلٹی تھیوری میں ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے کمپلیکسٹی تھیوری. کمپلیکسٹی تھیوری میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بعض پرابلم کمپلیکس ہے اور بعض پرابلم ایزی ہے. سمپل. جس طرح کے میں نے ایگزامپل دیا تھا کہ اگر ایک سارٹنگ پرابلم ہے تو اگر ملینز آف نمبرز کو ہم نے سارٹ کرنا ہے تو ایک آرڈینری کمپیوٹر اس کو آرام سے سارٹ آرام سے کرے گا. لیکن اگر شیڈولنگ پرابلم ہے تو اکارڈنگ ٹو مائیکل سپسر اگر ایک شیڈولنگ پرابلم ہے اور ہمارے پاس 1000 کلاس رومز ہے اور ان 1000 کلاس روم کے لیے ہم نے ایک شیڈول بنانا ہے کہ کس طرح ایک کلاس روم میں 2 کلاسز ایٹ اے ٹائم نہ آئی یعنی کوئی کنٹروڈکشن نہ ہو. تو سپر کمپیوٹر بھی میں بھی یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ سپر کمپیوٹر بھی اس پہ سینچریز لگائے. تو یہ کتنا کمپلیکس پرابلم ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. تیسرا ہمارے پاس فائنائٹ آٹومیٹا ہے. فائنائٹ آٹومیٹا ہم سمپل کمپیوٹرز کے لیے ایک ماڈل ہے. فائنائٹ آٹومیٹا کس کمپیوٹر کے لیے ایک ماڈل ہے؟ سمپل کمپیوٹر کے لیے ایک ماڈل ہے. جس طرح کہ آپ فزکس میں یا میتھمیٹکس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو ایک ماڈل ہوگا اور ایک ماڈل ایک ایریا پہ اپلیکیبل ہوگا لیکن دوسری ایریا پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس طرح فائنائٹ آٹومیٹا ہے. فائنائٹ آٹومیٹا یا اس طرح کمپیوٹیشنل تھیوری ہے. کمپیوٹیشنل تھیوری میں ہمارے پاس کافی سارے ماڈلز ہیں. تو بعض ماڈل ایک جگہ پہ اپلیکیبل ہے اور بعض ماڈل دوسری جگہ پہ اپلیکیبل ہے. اب فائنائٹ آٹومیٹا کون سے کمپیوٹرز کے لیے اپلیکیبل ہے؟ یہ ان کمپیوٹرز کے لیے اپلیکیبل ہے جو مطلب یہ ہے کہ پاورفل کمپیوٹر نہ ہو جس کی میموری اور پروسیسنگ پاور بہت کم ہو. تو اس کے لیے ہم کون سے ماڈل یوز کرتے ہیں؟ فائنائٹ آٹومیٹا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنائٹ آٹومیٹا کا ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو آٹومیٹن کہتے ہیں. اس آٹومیٹن کے 2 سب ماڈلز ہیں. ایک کو نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کہتا ہے اور دوسرے کو ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا کہتا ہے یعنی NFA اور DFA. اب سلائڈز کی طرف دیکھیں. Finite automata are good models for computer with an extremely limited amount of memory. ٹھیک ہے جناب. یہ کن کمپیوٹرز کے لیے یہ اچھے ماڈلز ہیں کہ جن کمپیوٹرز کی میموری بہت کم ہو, limited memory. Good. What can a computer do with such a small memory? ٹھیک ہے. Many useful things. In fact, we interact with such computers all the time as they lie at the heart of various electromechanical devices. یہ پھر اس طرح کہتا ہے کہ اگر اتنے لمیٹڈ اماؤنٹ آف میموری ہے تو اس پہ کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے یعنی اتنی کم میموری پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو حقیقت میں بہت سارے کارآمد اور یوزفل کام ہم اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کے ساتھ ہم ڈیلی لائف میں کافی انٹریکشن کر رہے ہیں. جس طرح کہ آٹومیٹک ڈور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا ہے. آٹومیٹک ڈور کا ایک ایگزامپل لے لے. آٹومیٹک ڈور میں بھی ایک اسمال اماؤنٹ آف کمپیوٹر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کمپیوٹر سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ اس کمپیوٹر کے فرنٹ پہ اور ریئر پہ ایک پیڈ ہوتا ہے. اس پیڈ میں ایک سینسر ہوتا ہے. اگر کوئی فرنٹ سے آ رہا ہے تو وہ سینسر کیا کام کرے گا؟ ڈور کو اوپن کرے گا. اگر کوئی ریئر سے آ رہا ہے یعنی پیچھے سے آ رہا ہے تو ڈور سینسر کیا کام کرے گا؟ ڈور کو اوپن کرے گا. گڈ. اگر کوئی فرنٹ اور ریئر سے یعنی فرنٹ سے اور بیک دونوں سے آ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم آ رہے ہیں تو ڈور اوپن ہوگا یا نہیں؟ ویسے اس پوائنٹ کو دیکھیں گے. اگر اوپن ہے تو اگر اسٹیٹ بھی ڈیپینڈ کرے گا سر. ہاں, اگر اوپن ہے تو اوپن ہی رہے گا. اگر اوپن نہیں ہے اور فرنٹ اور ریئر سے دونوں طرف سے لوگ آ گئے تو پھر یہ کلوز ہی رہے گا. کیوں کلوز رہے گا؟ کیونکہ اس دوران اگر یہ اوپن ہو جائے گا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ فرنٹ پہ یا ریئر پہ بندے کو اسٹرائک کرے یعنی بندے کو مارے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اوپن کلوز ہی رہے گا. ٹھیک ہے جناب. اب سلائڈ کی طرف دیکھیں. The controller for an automatic door is one example of such a device. Often found at supermarket entrances and exits, automatic doors swing open
when the controller sense the person is approaching. ऑटोमेटिक डोर क्या करेगा सुपरमार्केट में? स्विंग ओपन, ये ओपन हो जाएगा when the controller sense that a person is approaching. जब कंट्रोलर को ये पता चल जाए कि कोई बंदा आ रहा है तो ये क्या करेगा? स्विंग ओपन हो जाएगा. An automatic door has a fade in front to detect the presence of a person about to walk through the doorway. ऑटोमेटिक डोर में क्या होगा? इसमें एक वो होगा, एक पैड होगा फ्रंट पे, और इस पे पैड पे असल में सेंसर होता है, और वो ये डिटेक्ट करेगा कि कोई बंदा डोर की तरफ आ रहा है. Another pad is located to the rear of the doorway. दूसरा पैड दरवाजे के बैक पे होगा, so that the controller can hold the door long open long enough to the person for the person to pass all the way through, and also so that the door does not strike someone standing behind it as it open. और दूसरा डोर किधर होगा? दूसरा पेड इसके बैक पे होगा. बैक पे क्यों होगा? इसलिए होगा कि बाज़ औक़ात अगर फ्रंट से कोई बंदा आ रहा है और दरवाजा ओपन हो जाए और बैक पे अगर पैड ना हो तो क्या करेगा? बैक पे काफी सारे बंदे हो सकते हैं, तो इसको स्ट्राइक करेगा, इसको मारेगा. ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पे इसके एक पैड होता है. दिस कॉन्फ़िगरेशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. स्लाइड ठीक है, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रहा है ना? जी सर. जी यस सर. सर. सबको नजर आ रहा है? जी सर. यस सर. Yes, sir. ये दो स्टूडेंट्स एक्टिव है, बाकी मेरे ख्याल में बिल्कुल. शकीला आपको आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है. ठीक है, तो आप रिप्लाई करते रहे ना. सही है सर. ठीक है, ये स्लाइड नजर आ रहा है सबको? यस जी जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है. हाँ, तो इसमें एक फ्रंट Yes, पैड sir. है और एक रेयर पैड है. ठीक है, दरमियान में डोर है और sir. डोर के एक फ्रंट पैड है और रेयर पैड है. द कंट्रोलर इज इन आइदर ऑफ टू स्टेट्स, ओपन और क्लोज. कंट्रोलर या ओपन स्टेट में होगा या क्लोज स्टेट में होगा. ठीक है ना? रिप्रेजेंटिंग द करिस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑफ द डोर is shown in the following figure. There are 4 possible input condition. कितने input condition possible हैं? 4. 4. चार. Front, number 1 front, meaning that a person is standing on the pad in front of the doorway. Number 2 rear, meaning that a Rear. person is standing on the pad to the rear of the doorway. Number 3 both, मतलब ये है कि फ्रंट एंड बैक. meaning that people are standing at both sides. And number 4 neither, meaning that Neither. no one is standing on either pad. ठीक है ना? तो 4 पॉसिबल कंडीशंस है ना. या ये है कि फ्रंट पे बंदा आ रहा है, या ये है कि बैक पे बंदा आ रहा है, या ये कि दोनों पे आ रही है, फ्रंट और बैक दोनों पे, या ये है कि किसी भी न फ्रंट पे आ रहा है न फ्रंट पे और ना बैक पे. न बैक पे आ रहा है. गुड. तो अब इस डायग्राम को देखें. सबसे पहले दरवाजा किस स्टेट पे होगा? क्लोज. क्लोज में Close. कम होगा कि फ्रंट रेयर बोथ या नाइदर. ये डायग्राम में ये रेयर बोथ नाइदर जो लिखा है, तो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि इधर फ्रंट भी है. फ्रंट जी सर. रेयर Yes, sir. बोथ. लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें ना, Neither. लेफ्ट साइड पे जो क्लोज स्टेट है तो इसके ऊपर क्या लिखा है? रेयर बोथ नाइदर लिखा है ना. Rear, both. तो ये जी सर. रेयर के साथ फ्रंट भी है. फ्रंट रेयर बोथ या नाइदर, मतलब ये है कि Neither. फ्रंट और रेयर दोनों पे अगर बंदे आ गए, फ्रंट और रेयर दोनों पे अगर बंदे आ जाए तो दरवाजा किस में होगा? क्लोज में होगा ना. क्लोज Close. क्लोज स्टेट. Close में ठीक होगा. है. और नाइदर पे अगर आ गया, मतलब ये है कि न फ्रंट पे आया है कोई और भी न नहीं. बोथ पे रेयर पे आया है, तो फिर भी दरवाजा तो क्लोज ही होगा. Close. क्लोज ही होगा. Close Good. पे होगा. इसके बाद अगर फ्रंट पे बंदा आ गया और फ्रंट के साथ मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि फ्रंट के साथ स्लैश दे दे और रेयर भी लिख के, तो फ्रंट पे आ गया जी, सर. या रेयर पे. रेयर पे आ गया तो दरवाजा क्या होगा? ओपन. Open ओपन होगा. स्टेट में चला जाएगा. ओपन स्टेट में दरवाजा चला जाएगा. फिर जी सर. फ्रंट रियर बोथ, मतलब ये है कि फ्रंट, अब दरवाजा ओपन स्टेट में है. अब अगर फ्रंट Open पे है, और ठीक कोई है. बंदा आ रहा है या रेयर पे आ रहा है या दोनों पे आ रहा है, तो दरवाजा किस स्टेट पे होगा? ओपन Open. स्टेट में रहेगा. ओपन स्टेट में. ओपन पे होगा. और अगर नो नाइदर का मतलब क्या है? ओपन से क्लोज की तरफ कोई भी नाइदर नहीं करके है. दे.
کہ نہ فرنٹ پہ آ رہا ہے اور نہ اوپن پہ آ رہا ہے تو دروازہ کیا ہوگا؟ کلوز اسٹیٹ کلوز میں چلا اسٹیٹ جائے میں گا. چلا جائے گا. سمجھ آ گیا نا؟ جی سر. Yes, sir. کوئی Yes, sir. کنفیوژن ہے؟ No. No, sir. گڈ. اب فائنائٹ آٹومیٹا کے ہم فارمل ڈیفینیشنز کر رہے ہیں. فائنائٹ آٹومیٹا 5 چیزوں سے بنا ہے. کتنی چیزوں سے؟ 5. 5. پانچ چیزیں. 5. ٹھیک ہے. 5 5. تو اس کو 5 ٹوپل کہتے ہیں. اگر 6 سے بنا ہے تو جی. 6 ٹوپل, اگر 7 سے بنا ہے تو 7 ٹوپل, اگر 4 سے بنا ہے تو 5 to 4 ٹوپل. چونکہ یہ 5 سے بنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 5 5 ٹوپل. 5 ٹوپل. 5 tuple. گڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں فائنائٹ آٹومیٹا میں آپ لوگ اگر سلائڈز کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس ہے نا, 2 اسٹیٹس Yes, ہیں. sir. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان پٹ ہے, یعنی آپ لوگ ڈائیگرام کو دیکھیں, ان پٹ ہم دے رہے ہیں نا. Yes, جی sir. سر. Yes. تو فائنائٹ آٹومیٹا میں اسٹیٹس ہوں گے, ان پٹ ہوں گے, 2 ہو گئی. نمبر 3 کیا ہوگا؟ اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگا. کنڈیشن ہو. نمبر 4 فائنل اسٹیٹ ہوگا, اور نمبر 5 کنڈیشنز ہوگا, ٹرانزیشن فنکشن ہوگا. تو Condition. کتنے اسٹیٹس ہو گئی جی. فائنائٹ آٹومیٹا کی؟ سب سے پہلے 5 اسٹیٹس ٹوپل ہوں ہوگا. گے. اسٹیٹس ہوں گی نمبر 1. نمبر 2 ان پٹ ہوگا, ان پٹ الفابیٹس. نمبر 3 ٹرانزیشن فنکشن ہوگا, کیونکہ ہم نے اس کو بتانا ہے اگر یہ فرنٹ پہ آ گیا تو آپ فرنٹ اور ریئر دونوں پہ آ گئی تو آپ کلوز میں رہے, اگر صرف فرنٹ پہ آ گیا تو آپ اوپن ہو جائے, اگر صرف بیک پہ آ گیا تو آپ اوپن ہو جائے, اگر آپ اوپن اسٹیٹ میں ہے اور فرنٹ اور ریئر دونوں پہ آ رہا ہے تو آپ اوپن ہی رہے, اگر آپ اوپن اسٹیٹ میں ہے اور نہ فرنٹ پہ آ گیا اور نہ ریئر پہ آ گیا تو آپ کلوز اسٹیٹ میں چلے جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزیشن فنکشن کہتا ہے. ٹرانزیشن اس کے فنکشن. جو رولز ہے تو وہ رولز کو جب ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ Transition. ٹرانزیشن فنکشن ہے. تو تینوں. ٹرانزیشن فنکشن. نمبر 4 کیا ہو گیا؟ اس کا ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگا, اور نمبر 5 کیا ہے؟ کلوز اسٹیٹ. کلوز اسٹیٹ ہوگا, فائنل اسٹیٹ ہو. فائنل اسٹیٹ ہوگا. گڈ. ٹھیک ہے جناب. تو اب فارمل ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں. تو فائنائٹ آٹومیٹا کی کتنی وہ ہو گئی, ٹوپل ہو گئی؟ 5 ٹوپل ہو گئے. 5 ٹوپل ہو گئی. ٹھیک ہے. کیو کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل اسٹیٹس. کیو کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل اسٹیٹس. ٹوٹل Total اسٹیٹ. سگما states. کا کیا مطلب ہے؟ Total states. سگما کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان پٹ الفابیٹس. الفابیٹ. اور سگما کا کیا مطلب ہے؟ ٹرانزیشن. Transition function. کیو ناٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹارٹ اسٹیٹ. Start اسٹارٹ state. اسٹیٹ. Start state. ایف کا کیا مطلب ہے؟ فائنل. Except states. Final. ایکسپٹ اسٹیٹ یا فائنل اسٹیٹس. ٹھیک ہے جناب. تو نمبر 1 اصل میں ادھر 6 لکھے ہے تو 6 نہیں ہے, اصل میں یہ 5 ہے. اے فائنائٹ آٹومیٹا ایز اے 5 ٹوپل, اس کو بھی میں نے ایک اسٹیٹ دیا ہے نا, نمبر 1 دیا ہے, تو اس میں 1 نہیں ہے. اگر اس کو ہم ہٹائیں جی سر. تو 5 اسٹیٹس ہے نا. جی سر. Yes, sir. Yes, sir. A finite automata is a 5 tuple where Q is finite set called the states. ٹھیک ہے. Sigma is finite set called the alphabets. اس پہ input alphabets ہوں گے نا. اور ٹرانزیشن فنکشن ہے. ٹرانزیشن فنکشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک خاص اسٹیٹ پہ ہے اور آپ نے input alphabets یعنی سگما سے آپ نے input alphabet ریسیو کیا تو آپ کسی دوسری اسٹیٹ کی طرف ٹرانزیکشن کریں گے. نمبر 3 جو ہے اصل ادھر نمبر 4 لکھا ہے, اصل میں نمبر 3 ہے. سمجھ آ گیا نا ٹرانزیشن فنکشن؟ Yes, sir. جی سر. Yes, sir. Q naught belongs to Q is the start state. Q naught ایک ہمارے پاس اسٹارٹ اسٹیٹ ہوگا. آپ لوگ دیکھیں نا, اسٹارٹ اسٹیٹ ہو یعنی ایک اسٹیٹ. Q naught ہمارے پاس اسٹارٹ اسٹیٹ صرف ایک ہوگا. صحیح. جی سر. سمجھ آ گیا. Our if ٹھیک ہے. is less than or equal to Q is the set of except states. تو مطلب یہ ہے کہ except states یعنی final states ہمارے پاس کتنے ہو سکتے ہیں؟ More than one. More than one. یعنی اتنی لیٹس سپوز ٹوٹل اگر ٹوٹل ہمارے پاس 2 اسٹیٹس ہے تو فائنل اسٹیٹ کتنے ہو سکتے ہیں؟ شکیلا 2 بھی ہو سکتے ہیں سر. 2 سے بھی دو ہو سکتے ہیں. 2 بھی ہو سکتے ہیں. سر. یعنی 2 سے زیادہ Yes, تو sir. نہیں ہو سکتی ہے. فائنل اسٹیٹ از لیس دین اور اکول ٹو ٹوٹل اسٹیٹس. تو فائنل اسٹیٹ ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے. اگر لیٹس سپوز ٹوٹل اسٹیٹس ہمارے پاس 5 ہے تو فائنل اسٹیٹس کتنے ہو سکتے ہیں؟ 5 ہو سکتے ہیں ہو میکسیمم. سکتے ہیں. میکسیمم 5 ہو سکتے ہیں اور منیمم 5 ہو سکتا 5 سے کم بھی. 5 سے One. کم جتنے بھی. 1 Minimum one. منیمم 1 بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتے ہیں. تو اس لیے 5 ہو سکتا ہے. F is less than or equal to Q is the set of except states. اسٹیٹ. States. سمجھ آ گیا نا؟ جی سر. Yes, sir. ٹھیک ہے جناب.
तो ये थ्योरी तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है ना? Yes, sir. यस सर Yes, ओके sir. जनाब, तो अब सिर्फ इसको थोड़ा सा आप लोगों के मेमोरी को मैं फ्रेश करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है सर 5 प्रेस A finite automaton has several parts. ये तो आप लोगों को पता है कि काफी सारे पार्ट्स इसके हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन होते हैं, इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, इसके स्टार्ट स्टेट होता है एंड फाइनल स्टेट होता है, ठीक है? A finite automaton has several parts. It has a set of states and rules for going. It has a set of states and rules for going from one state to another state. Finite automata में set of states हो सकते हैं, ठीक है? It has a set of states. Set of states हो सकते हैं and rules for going from one state to the another state. और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए इसकी रूल्स होते हैं और इस रूल्स को हम ट्रांजिशन कहते हैं ना, ठीक है? जी सर Depending on the input symbol and it has a set of states and rules for going from one state to another depending on the input symbol, ठीक है? तो इसको ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं. It has an input alphabet. फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट अल्फाबेट होता है that indicates the allowed input symbols. और इनपुट अल्फाबेट का क्या मतलब है? इनपुट सिंबल्स, यानी ये इनपुट अल्फाबेट अगर फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर ए है या बी है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अलाउड इनपुट अल्फाबेट्स है, ठीक है? It has a start state. फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टार्ट स्टेट होगा and a set of except states. और काफी सारे मतलब ये है कि except states एक से ज्यादा हो सकते हैं. The formal definition says that a finite automata is a list of those 5 objects. Formal definition क्या कहते हैं कि finite automata इन 5 objects का एक combination है. 5 objects कौन कौन से हैं? Set of states है, input alphabets है, rules for moving. Rules for moving का मतलब क्या है? Transition function है ना? Our Yes, sir. ट्रांजिशन फंक्शन start state है, our except state है. तो ये इसका क्या है? Finite automata is the combination of these 5 objects. In mathematical language, a list of 5 elements is often called a 5 tuple. Mathematical language में 5 elements के list को क्या कहते हैं? 5 tuple कहते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि finite automata is a list of 5 tuple. Hence, we define a finite automata to be a 5 tuple consisting of these 5 parts. We use something called a transition function, frequently denoted by sigma, to define the rules for moving. Transition function हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? To define the rules for moving. यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स को मूव करने के लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. यानी To change the state. यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मूव करने के लिए हमारे पास कोई रूल्स होते हैं ना. वो रूल्स डोर में क्या थे? डोर में ये था कि अगर दरवाजा ओपन स्टेट पे है और दरवाजा क्लोज स्टेट में है और फ्रंट से कोई बंदा आ गया तो दरवाजा ओपन करे, अगर रेयर से कोई बंदा आ गया तो दरवाजा ओपन करे. तो ये रूल्स है ना. अगर फ्रंट से आ गया तो दरवाजा ओपन करे, तो ये एक रूल हो गया. दूसरा रूल ये है कि अगर बैक से कोई बंदा आ गया तो दरवाजा ओपन करे, ये भी एक रूल हो गया. तीसरा रूल ये है कि अगर फ्रंट और बैक दोनों से एट द सेम टाइम 2 बंदे आ गए तो आप दरवाजा ओपन न करे, तो ये भी एक रूल है ना. Yes, जी sir. सर चौथा रूल ये है कि अगर दरवाजा ओपन है और फ्रंट और रेयर यानी बैक दोनों से बंदे आ रहे हैं तो आप दरवाजा को ओपन ही रहने दे, तो ये एक रूल है ना, एक ट्रांजिशन फंक्शन है ना. सर पांचवा रूल हमारे पास ये था कि अगर दरवाजा ओपन स्टेट में है और न फ्रंट से कोई बंदा आ रहा है और न रेयर से कोई बंदा आ रहा है तो आप दरवाजा को क्लोज स्टेट में लेके जाए, तो ये भी एक रूल हो गया. ठीक है जनाब. तो जी इसको सर. क्या कहते हैं? ये हम ट्रांजिशन फंक्शन में ही स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, जी सर आवाज आ रही है सबको ना? Yes, sir. Yes, sir. जी सर यस सर Okay, Janab. If the finite automata has an arrow from a state X to a state Y labeled with the input symbol 1, that means that if the automata is in state X, when it reads a 1, it moves to state Y. अगर finite automata में state X से state Y के तरफ एक arrow हो और इस arrow के ऊपर 1 हो, तो इसका क्या मतलब हो गया शकीला? X reads when अगर X से instead Y, X when अगर- it reads is 1 sir. अगर X से सर ये Y 1 को रीड करेगा, ये 1 को रीड करेगा और X से Y स्टेट की तरफ चला जाएगा, मूव करेगा. मूव करेगा.
तो अगर स्टेट x से स्टेट y की तरफ एरो है और इस एरो के ऊपर 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा स्टेट x पे 1 रीड करेगा और स्टेट Yes, sir. 1 y की तरफ ट्रांजैक्शन करेगा. तो हम Yes, इसको sir. किस तरह इंडिकेट करते हैं? We can indicate the same thing with the transition function by saying that x अगर स्टेट x पे है 1 को रीड किया is equal to y, तो y की तरफ ये ट्रांजिशन करेगा. सही. खटक साहब समझ आ गया? जी सर, जी सर, जी जी सर. सर. और वो बनो से ऑनलाइन है क्या नहीं? वो बनो वाला कौन सर? बनो नो का सर, भी बनने वाले का पता नहीं. हम दो करक वाले हैं. और 2 करक अली अब्बास वाला है. नो सर, वो दूसरा है सर. नहीं मैं सर, वो पेशावर बोर्ड वाला दोनों बात कर रहा हूं. ताहिर करक से ऑनलाइन है सर. और दोनों ताहिर करक से वो पेशावर बोर्ड वाला होगा एक. जी सर, एक पेशावर बोर्ड वाला है बोर्ड और एक वाला एजुकेशन सर. मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाला है सर. ठीक है जनाब, गुड. दिस नोटेशन ये समझ आ गया ना? ट्रांजिशन x जी सर. रीड 1 इज इक्वल टू y. अगर फाइनाइट ऑटोमेटा स्टेट x पे है उसने 1 को रीड किया जी तो ये सर, y जी की सर, तरफ जी सर. ट्रांजिशन करेगा. दिस नोटेशन इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल शॉर्टहैंड. ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल शॉर्टहैंड है. Putting it all together we arrive at the formal definition of finite automata. ठीक है, इस सब को हमने जब इकट्ठा किया तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा के फॉर्मल डिफिनेशन की तरफ आ गए. समझ आ गया ना? जी सर. Yes, sir. जी सर. यस सर. ओके. Yes, sir. अब ये एक एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस द फाइनाइट ऑटोमेटा M1 फॉर कन्वीनियंस. तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका नाम M1 है, इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये इनफाइनाइट ऑटोमेटा में खटक साहब कितने स्टेट्स है? सर किसे कह रहे हैं? और दोनों खटक को. सर इसमें 3 स्टेट्स है. इसमें स्टार्ट स्टेट कौन सा है? Q1 सर. और फाइनल Q2. Q2. शकीला ये फाइनल स्टेट Q2 है या Q3? Sir, Q2. गुड. ठीक है, तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा में टोटल 3 स्टेट्स हैं. Q1, Yes, sir. Q2, Q3. टोटल स्टेट्स कितने हो गई? 3 states. 3 जी. स्टेट्स हो जी गए. सर. तो Q किसके बराबर हो गया? Q बड़ा Q किसके बराबर हो गया? किसके? The set of Q1, Q2 and Q3 Q2, sir. Q3. गुड. Q3. और सिग्मा किसके बराबर हो गया? 0, ये 1. ट्रांजिशन फंक्शन है सर. 0, 1. गुड नहीं, नहीं. गुड गुड. हाँ, सिग्मा 0, 1 के बराबर है. सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन है. मैं इस 2 नंबर की बात कर रहा हूँ. क्या कहते हैं इसको? समेशन 0, 1 के बराबर है ना? इनपुट अल्फाबेट्स. Yes, sir. गुड. Yes, जी sir. सर. तो टोटल हमारे पास स्टेट्स नंबर 1 आप देख ली तो Q इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3. मतलब ये है कि इसमें टोटल 3 स्टेट्स है, Q1, 2 and 3. और समेशन हमारे पास 0, 1 के बराबर है तो 0, 1 इनपुट अल्फाबेट्स है ना? और Yes. जी सर. ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब्ड एज. ट्रांजिशन को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? नेक्स्ट. तो ट्रांजिशन को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं. ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है. खटक साहब, जी सर. ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है. यानी हमारे पास टोटल 3 स्टेट्स है, Q1, Q2, Q3 है और 2 इनपुट अल्फाबेट्स है 0 and 1. तो जब फाइनाइट ऑटोमेटा Q1 स्टेट पे है और वो 0 को रीड करे तो ये किस स्टेट पे चला जाएगा? Q1 पे ही रहेगा. Q1 Q1 में. पे ही रहेगा. Q1 पे ही वेरी रहेगा. गुड. और Q1 स्टेट पे है और अगर 1 को रीड करी तो किधर चला जाएगा? Q2. पे चला- Q2 पे चला Q3. जाएगा सर. Q2 पे चला जाएगा. Q2 sir. और अगर Q2 स्टेट पे है और 0 को रीड किया तो शकीला ये किधर चला जाएगा? Sir, Q3 पे चला जाएगा. और Q2 पे अगर 1 को रीड किया तो Q2 पे ही Q2 रहेगा पे ही sir. रहेगा. गुड. और Q3 पे अगर 0 को रीड किया तो Q2 पे ही रहेगा और अगर 1 को रीड किया तो Q2 पे ही रहेगा. तो ये इसका ट्रांजिशन Yes. फंक्शन है. ठीक है. Yes sir. तो जब हम इसके लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर हम मशीन को ऑटोमेटिक करते हैं. मशीन फिर ऑटोमेटिकली इस ट्रांजिशन फंक्शन को, इस टेबल को देख के ही वो ट्रांजिशन कर रहा है. ठीक है जनाब. Yes. यस सर. और इसका स्टार्ट स्टेट कौन सा है? Q1 is. Q1. Q1 है सर. और Q1. फाइनल स्टेट्स इसमें कितने हैं? Q2. एक 3 है हो सर. सकते हैं. Q2. एक स्टेट. फाइनल Q2. स्टेट एक है और वो Q2 है. समझ आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर. Yes, No sir. sir, Yes. clear है. वेरी गुड. नेक्स्ट. फाइनाइट ऑटोमेटा
If A is the set of all strings that machine M accept, we say that A is the language of machine M and write language of M is equal to A. अगर A हमारे पास set of strings है, ठीक है, मतलब ये है कि काफी string हो सकते हैं ना मशीन, अगर मशीन काफी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमने एक मशीन डिजाइन किया है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा कि जो भी स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो से स्टार्ट होता है तो मशीन इसको एक्सेप्ट करेगा. तो जीरो से काफी सारे स्ट्रिंग स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है जनाब. तो इन सारे स्ट्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ मशीन कहते हैं. समझ आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लैंग्वेज ऑफ मशीन कहते हैं. और हम इसको किस तरह लिखते हैं, लैंग्वेज ऑफ मशीन M इज इक्वल टू A. तो ये इस मशीन का लैंग्वेज क्या है, A है, ठीक है जनाब. वी से दैट M रिकॉग्नाइज A और दैट M एक्सेप्ट्स A. L M इज इक्वल टू A का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मशीन L रिकॉग्नाइज A या मशीन M एक्सेप्ट्स A. और ठीक है, because the term accept has different meaning when we refer to machine accepting strings and machine accepting language, we refer the term recognize for language in order to avoid confusion. तो इसका मतलब ये इसमें ये कहता है कि एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट काफी सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में हम यूज कर सकते हैं. तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोग वर्ड रिकॉग्नाइज का है कि मशीन M रिकॉग्नाइज A, ठीक है. जी सर. कोई कंफ्यूजन है? ये सिंपल सी बात है. मतलब ये कि मशीन जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो हम मतलब ये कि मशीन काफी सारे 15-20 स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम इसको इस मशीन का क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं. Language और कहते हम हैं. फॉर्मली ये लिखते हैं कि मशीन M रिकॉग्नाइज या मशीन M एक्सेप्ट्स A. तो फिर ये कहता है कि एक्सेप्ट काफी सारे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में हम यूज कर रहे हैं. तो अच्छी बात यह है कि हम ये कहें कि मशीन M रिकॉग्नाइज A, ठीक है. A machine may accept several strings, but it always recognize only one language. Machine strings काफी सारे accept करते हैं, लेकिन language एक recognize करता है. समझ आ गया ना? Yes, sir. जी सर. लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में काफी सारे स्ट्रिंग्स होते हैं ना, क्या नहीं जी होते? सर. आप लोग Yes, हम sir. जो डिस्कशन होते कर हैं. Yes, रहे sir. हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा लैंग्वेज है? उर्दू है ना. उर्दू. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. स्ट्रिंग्स हम कितनी यूज कर रहे हैं? बहुत सारे यूज बहुत कर रहे सारे. हैं. तो बहुत इस तरह सारे. मशीन का भी ये सूरत हाल है. अगर आप एक लैंग्वेज, लेट्स सपोज एक लैंग्वेज के लिए आपने मशीन डिजाइन किया, इस लैंग्वेज के लिए कि स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे होगा. लेट्स सपोज अगर कोई स्ट्रिंग स्टार्ट ए से होगा तो वो एन बी ए पे होगा, या अगर स्टार्ट बी से होगा तो एन बी बी पे होगा. तो ये एक लैंग्वेज है. लेकिन इस तरह कितने सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं कि वो ए से स्टार्ट होगा और ए पी ही खत्म होगा, या बी से स्टार्ट होगा और बी पी ही खत्म होगा. तो काफी सारी स्ट्रिंग्स है ना, लेकिन लैंग्वेज ये जी, क्या सर. है? लैंग्वेज एक है, द लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम अल्फाबेट. तो इसके लिए हम जी, एक ही लैंग्वेज एक ही मशीन बनाएंगे, और ये मशीन लैंग्वेज एक रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन स्ट्रिंग काफी सारे एक्सेप्ट करेंगे. जी सर. समझ आ रहा है Yes, ना? sir. Yes, sir. जी सर. Yes, sir. ओके जनाब. if the machine accepts no Sir, ये string. जी sir जी एक जनाब. question है. जी जी बोले. सर ये जो it means कि A हमारे पास the combination of strings कह सकते हैं हम. बिल्कुल लैंग्वेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. हाँ, combination मतलब हमारे पास मशीन है, L हमारे पास लैंग्वेज ऑफ मशीन हो गई. तो एक लैंग्वेज ऑफ मशीन बहुत सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर सकता है. तो यहाँ इन्होंने स्ट्रिंग्स को A से डिनोट किया है. तो A means the combination of different strings. बिल्कुल बिल्कुल. यानी ठीक है अगर सर. आप ऊपर Okay, देखिए thanks. एल एम इज इक्वल टू ए, तो लैंग्वेज ऑफ मशीन इज इक्वल टू ए. लैंग्वेज ऑफ मशीन क्या है? ए है ना. तो ए इज द Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स. सही है. Okay, thank जी you. सर. समझ आ गया ना? Yes, sir. Yes, If the- इस तरह गुड, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. इस तरह का अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन करते रहें. If the machine accepts no string, it still recognize one language, namely the empty language. तो इस तरह भी पॉसिबल है तो कि मशीन कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट न करे. अगर एक मशीन कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर भी वो एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रहा है, और इसको एम्प्टी लैंग्वेज कहते हैं. empty language कहते हैं. ठीक है.
Yes, sir. Yes, sir. एम्प्टी लैंग्वेज की कंप्यूटर साइंस में इस तरह की हकीकत है कि जिस तरह के आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एम्प्टी सीट आप लोगों Yes, ने sir. देखा है ना, Yes, sir. जी Yes, सर sir. तो Yes, जिस sir. तरह के एम्प्टी सीट की जो वैल्यू है या जो हकीकत है वो एम्प्टी लैंग्वेज के है, और ये काफी Right. सारे बहुत सारे ये बहुत करामत है. ओके नेक्स्ट. अब ये क्या है? द फॉलोइंग फिगर शो अ 5 स्टेट मशीन M4. ये एक मशीन है, इसका नाम M4 है. आप लोग अगर इस मशीन को देखें तो ये मशीन या A से स्टार्ट होगा और या बी से B से स्टार्ट होगा. ये 20 से स्टार्ट होगा. ठीक है, लेट्स सपोज मशीन A से स्टार्ट हुआ, फिर A के बाद ये डायरेक्ट A को भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि A डायरेक्टली लीड्स टू Q1. इस मशीन में कितने स्टेट्स है शकीला? Sir, 1, 2, 3, 4. Sir, 4 states, 5 states. Sir. 5 स्टेट्स है. Oh, खटक साहब इसके फाइनल स्टेट्स कितने हैं? दो Q1 है सर सर. जी, Q1, R1. Q1 is the Q- final state. और दूसरा R1 सर R1. 2 फाइनल स्टेट्स है. टोटल स्टेट्स इसके 5 है. Q1 एंड R1 फाइनल स्टेट्स है और इसका स्टार्ट स्टेट कौन सा है? S सर Yes. Yes. इस गुड. ठीक है, तो ये इस मशीन ये 5 स्टेट्स मशीन है. इसके इनपुट अल्फाबेट्स कितने हैं? 2 इनपुट अल्फाबेट्स है A और B. टोटल 5 B. स्टेट्स है. टोटल 5 स्टेट्स है. इसका स्टार्ट स्टेट है. Q1 एंड R1 इसके 2 फाइनल स्टेट्स है. तो इस मशीन ने लेट सपोज A से स्टार्ट ले लिया. जब A से स्टार्ट ले लिया तो इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट किया. ठीक है, अगर B से स्टार्ट ले Yes. लिया तो B डायरेक्टली लीड्स टू R1, वो भी फाइनल स्टेट को लीड कर रहा है तो B को भी एक्सेप्ट कर रहा है. अगर A के बाद जी सर और A आ गई, काफी सारे A आ गई, 2-3 A आ गई तो B एक्सेप्ट कर रहा है ना. जी Yes, सर sir. ठीक है, अगर A के बाद B आ गया तो शकीला इसको एक्सेप्ट कर सकता है. A के बाद अगर B आ गया, जी सर, आप एक ही रिपीट बात करें. है. Yes, sir. A के बाद अगर Yes, B आ sir. गया, लेट्स सपोज Yes, sir. 3A आ गई, 3A आ गई, इसके बाद B आ गया तो ये मशीन एक्सेप्ट करेगा? 3A or B. जी सर, एक्सेप्ट करेगा. वो सेकंड स्टेट पे जाएगा, Q2 पे. Q2 पे जाएगा तो Q2 एक्सेप्ट स्टेट है. नो सर, No, sir. हाँ, शकीला क्या Q1 करेगा? फाइनल स्टेट. 3A और B ये एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, 3 or no, sir. एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 3A आ गया तो फर्स्ट A पे ये Q1 को आ गया, फिर डबल A Yes, पे sir. इस Q1 में ही रह गया डबल A पे, फिर तीसरी B पे ये Q1 से Q2 की तरफ चला गया. तो जब Q2 Yes, की sir. तरफ चला गया तो Q2 एक्सेप्ट स्टेट नहीं है. यस सर, यस सर. ठीक है, फिर 3AB और इसके बाद A आ गया तो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं. Yes, sir. यस सर, वापस Yes, sir. Q1 पे आ जाएगा. 3A or B, Yes. Q1 पे आएगा. Yes, sir. हाँ, इसी तरह 3A डबल B डबल A एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं. 3A डबल B डबल A यस सर, एक्सेप्ट करेगा. जी सर शकीला एक्सेप्ट करेगा? मुझे तो नहीं लगता. 3A तो नहीं, sir. आप देखिए मशीन की तरफ देखिए. 3A 3A. हाँ, फिर इसके बाद डबल B Yes, sir. और इसके बाद A. 3A double B ऊपर A. Yes, sir. एक्सेप्ट करेगा? खटक साहब एक्सेप्ट करेगा ना? जी सर, एक्सेप्ट जी करेगा. सर, जी सर, हाँ. क्योंकि Q1 पे आ जाएगा. क्योंकि फाइनल स्टेट की तरफ वापस आ रहा है. Yes, हाँ, sir. तो मतलब इसका क्या हुआ कि जब A से स्टार्ट हुआ और A पे खत्म हुआ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है. करेगा. कर रहा है. Yes, sir. अगर A से स्टार्ट हुआ और B पे खत्म हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. करेगा. नहीं नहीं करेगा. करेगा. तो इसका मतलब ये है कि ये A से जब स्टार्ट हुआ और A पे खत्म हुआ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है. अब राइट साइड की तरफ चले जाइए. B से स्टार्ट हुआ, यस. लेट्स सपोज डबल B है तो डबल B को एक्सेप्ट करेगा ना? Yes, sir. जी यस सर सर. ठीक है जनाब. डबल B A को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? No, sir. नो सर डबल B डबल A को एक्सेप्ट करेगा? नो सर Double B. No, double, sir. no, ये sir. 2 पे जाएगा. No, नो sir. सर. नो. डबल B डबल A डबल B एक्सेप्ट करेगा? Yes, जी sir. सर Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. तो अगेन इसका क्या मतलब है कि जब B से स्टार्ट हुआ और B पे खत्म हुआ तो एक्सेप्ट करेगा. अगर B से Yes. स्टार्ट हुआ और A पे खत्म हुआ तो एक्सेप्ट नहीं नहीं करेगा. करेगा. करेगा नहीं करेगा. वेरी गुड, अब समझ आ गया. तो ये मशीन
क्या है ये, क्या एक्सेप्ट करेगा कि ये ओहो That स्ट्रिंग starts and एक्सेप्ट ends with the करेगी, same letter. ओहो गुड, वेरी गुड। ये कौन सा खटक है? सर एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाला ओ माशाल्लाह। सर खटक स्क्वायर है ना, पता नहीं चलता। हाँ, एक खटक को जानता हो, पेशावर बोर्ड वाला जानता हो, लेकिन दूसरा सर हमारा Thank you, फायदा sir, ये है, आप thank you. खटक साहब कहते हैं दोनों रिप्लाई में कोई भी कर सकता है सर। असल में जब मैं खटक साहब कहता हूँ तो मेरा मतलब ही दोनों होते हैं। तो अब इसका Thank मतलब you, ये sir, हुआ कि thank you. ये मशीन कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है कि स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम लेटर। Same letter. ठीक है, Same letter. तो ये लैंग्वेज हो गया। ये हमारे पास क्या लैंग्वेज हो गया? द लैंग्वेज व्हिच स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम लेटर। तो ये लैंग्वेज हो गया। ये अब स्ट्रिंग्स Same इसके letter, कितने हैं? yes. तो इसके तो काफी सारी स्ट्रिंग्स हो गई ना। Yes. यानी सिंगल ए एक्सेप्ट करता Yes, है, sir. सिंगल बी एक्सेप्ट करता है, डबल ए एक्सेप्ट Double. करता है, डबल बी एक्सेप्ट करता है, BA भी डबल बी, डबल ए, डबल ए, डबल ए, डबल बी ए एक्सेप्ट करता है, डबल ए, sir. सिंगल बी, डबल ए एक्सेप्ट करता है। तो काफी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, लेकिन लैंग्वेज Yes, sir. जी सर, एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जनाब, Yes. जी सर। तो ये टेक्स्ट जो है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये बहुत जबरदस्त और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें और इसको खूब पढ़ें। अब नेक्स्ट करें ना, Yes. नेक्स्ट नॉन डिटर, अभी क्या है नॉन डिटर्मिनिज्म। ये जो आप लोगों जो फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोगों ने डिस्कस किया तो ये डिटर्मिनिस्टिक थे। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि अगर आपने ए को रीड किया तो इस साइड पे चले जाए, अगर आपने बी को रीड किया, लेट्स सपोज प्रीवियस एग्जांपल में अगर आपने ए को रीड किया तो आप स्टेट Q1 पे चला जाए, अगर बी को रीड Yes, किया sir. तो R1 पे चला जाए। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है ना। जी सर। Yes. अगर Yes, sir. आप स्टेट बी पे है और आपने ए को रेड किया तो स्टेट सी पे चला जाए, अगर आप स्टेट बी पे है और आपने बी को रेड किया तो स्टेट डी पे चला जाए। तो हर एक ट्रांजैक्शन के हमारे पास क्या थे? डिटर्मिनिस्टिक थे, यानी हर एक एरो के ऊपर हमारे पास सिंबल थे और हम डिटर्मिनिस्टिकली इसको ये बता रहे थे कि अगर आप प्लस स्टेट पे है और आपने ए को रीड किया तो आप इस स्टेट पे चला जाए, और अगर आप प्लस स्टेट पे है और आपने बी को रीड किया तो इस स्टेट पे चला जाए। तो इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। Deterministic. लेकिन हमारे पास एक पावरफुल ऑटोमेटा है और इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म हम ऐड करते हैं और इसको क्या कहता है? NFA, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो अब हम NFA की तरफ आ रहे हैं। और नॉन डिटर्मिनिज्म जो है तो ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है और ये बहुत कारआमद कंसेप्ट है, और आप लोग देखेंगे कि नॉन डिटर्मिनिज्म जो है तो ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है जनाब, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। समझ आ गया ना नॉन डिटर्मिनिज्म की? जी सर। Non-determinism is a useful concept that has had a great impact on the theory of computation. So far in our discussion, every steps of computation follows in a unique way from the preceding steps. जो हमने डिस्कस किया तो वो एक यूनिक वे को फॉलो कर रहा था। तो ये कौन सा था? ये डिटर्मिनिस्टिक था। When the machine is in a given state and read the next input symbol, we know what the next state will be. It is determined. We call this deterministic computation. Deterministic computation हम किसको कहते हैं? कि अगर मशीन एक खास स्टेट पे है और हम जानते हैं कि इस स्टेट पे मशीन ने इस इनपुट को रीड किया तो ये प्लस स्टेट पे ट्रांजैक्शन करेगा, तो इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? इसमें फिर ये डिटरमिन नहीं होता है कि अगर मशीन स्टेट एक्स पे है और इसने ए को रीड किया तो ये स्टेट वाई पे भी ट्रांजैक्शन कर सकता है और स्टेट जेड पे भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? नॉन डिटर्मिनिज्म। Non-deterministic. ठीक है, Yes. नॉन डिटर्मिनिज्म ठीक है, इज ए जनरलाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये डिटर्मिनिज्म का एक जनरलाइजेशन है। डिटर्मिनिज्म को अगर हम जनरलाइज करें तो इसको नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं। सो एवरी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑटोमेटिकली ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हर एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होता है। मतलब ये है कि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया?
Yes, Yes, sir. sir. Is figure 4 shows non-determinism finite automata may have non-deterministic finite automata may have additional features. तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एडिशनल फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस फिगर 4 को देखें, डायग्राम नजर आ रहा है? Yes, sir. जी सर। Yes, Yes, sir. sir. अब 0 पे मशीन क्या करेगा? Q1 पे ही रहेगी। Q1 पे ही पे रहेगा सर। गुड। और 1 पे Q2 पे जाएगा। Q2 की तरफ मूव करेगा या तो Q1 पे रहेगा Q1 में या Q2 की Q2 तरफ में। या जाएगा। Q2 की तरफ मूव करेगा। मूव Yes, sir. करेगा। तो जब मशीन 1 Non-deterministic. जब मशीन 0 रीड करता है तो ये क्या 1 पे ही रहेगा, लेकिन जब मशीन 1 रीड करता है तो ये एट ए टाइम 1 पे भी ही रहेगा और एट ए टाइम कंट्रोल क्या 2 पे भी होगा। जाएगा। समझ आ गया ना? तो अब Yes, Yes. sir. जब मशीन 1 रीड करता है तो एट ए टाइम कंट्रोल 2 जगहों पे होता है, क्या 1 पे भी होता है और क्यों 2 पे 2 पे भी। क्यू 2 पे भी होता है। अब क्यू 2 की तरफ आए, क्यू 2 पे जब 0 रीड करेगा तो किधर जाएगा? Q3 Q3 की तरफ Q3 मूव की क्यू करेगा। 3 की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर क्यू 2 पे ये कुछ भी रीड न करे, न 0 और न 1, तो अगेन ये क्यू 2 की तरफ चला जाएगा। किस चीज पे? Q3 की तरफ। Q3 की Q3 तरफ। की तरफ। Q3 की तरफ सर। क्यू 3 की तरफ जाएगा किस चीज पे? MT पे। एमटी पे। MT पे भी जाएगा सर। Yes, sir. एमटी पे जाएगा। मतलब ये है क्यू 0 2 या फिर empty। 0 या एमटी। अगर मशीन क्यू 2 स्टेट पे है तो क्यू 2 पे अगर 0 रीड किया तो भी क्यू 3 की तरफ चला जाएगा, और अगर 0 को रीड न Q3 पे किया जाएगा। तो फिर भी कंट्रोल क्यू तो 3 भी की तरफ जाएगा। चला जाएगा। समझ आ गया ना? Yes. Yes, जी sir. सर। Yes, sir. ओके जनाब। तो अब ये Yes, sir. अब डिटरमिनिस्टिक एनएफए और डीएफए में डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है या डिटरमिनिस्टिक है? नॉन ये डिटरमिनिस्टिक है non सर। Non ये deterministic। नॉन डिटरमिनिस्टिक है। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक में फर्क क्या है? नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक में फर्क ये है, एक तो आप लोगों ने देख लिया ना, एक फर्क ये है ना जी सर। कि Yes, वन पे 2 ट्रांजैक्शन हो गई, क्या 1 की तरफ और क्या 2 की तरफ। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये Yes. है कि ओह आप लोगों को इधर नजर नहीं आ रहा है कि अगर आप लोग क्यू 2 को देखें तो क्यू 2 ने सिर्फ 0 पे ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन 1 पे क्यू 2 ने ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 1 पे किया है कि Yes, नहीं? sir. नहीं किया। MT. 1 पे ट्रांजैक्शन नहीं है ना, क्यू 2 की तरफ देखिए क्यू जी 2। सर। तो क्यू 2 पे 0 पे ट्रांजैक्शन है लेकिन 1 पे नहीं है, तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अगर इधर 1 होता sir. तो फिर ये डिटरमिनिस्टिक होता है, लेकिन क्यू 2 ने सिर्फ 1 पे 0 पे ट्रांजैक्शन किया है, 1 पे नहीं किया है, तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। इस तरह आप क्यू 3 की तरफ देखें, क्यू 3 ने सिर्फ 1 पे ट्रांजैक्शन किया है, क्यू 3 ने 0 पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो अगेन ये क्या है? जी सर। नॉन डिटरमिनिज्म है। Non deterministic। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। एक नॉन डिटरमिनिज्म इसलिए है नंबर 1 कि स्टेट क्यू 1 ने 1 पे 2 ट्रांजैक्शन किया है, क्यू 1 की तरफ भी किया है और क्यू 2 की तरफ किया है, तो ये नॉन डिटरमिनिज्म हो गया। अगेन नॉन डिटरमिनिज्म इसलिए है कि क्यू 2 पे एमटी पे क्यू 3 की तरफ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये नॉन डिटरमिनिज्म हो गया। अगेन दूसरा नॉन डिटरमिनिज्म क्यों है? इसलिए है कि क्यू 2 पे क्यू 2 स्टेट ने 1 पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो इसलिए ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अगेन क्यों है? क्यू 3 स्टेट ने 1 पे सिर्फ ट्रांजैक्शन किया है, 0 पे नहीं किया है, तो अगेन ये नॉन डिटरमिनिज्म है। Non deterministic। समझ आ गया? Yes. जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Okay, जनाब। The difference between a deterministic finite automata abbreviated DFA and non-deterministic finite automata abbreviated NFA is immediately apparent. आप लोगों ने देख लिया ना? Yes. First difference क्या होता है? Every state of DFA always have exactly one existing transition arrow for each symbol in the alphabet. DFA में हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन होगा। DFA में हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इधर नहीं है। इधर अगर आप स्टेट 2 को आप देख ले तो हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टेट 2 में हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन है? नहीं है। नहीं है सर। 0 पे है लेकिन 1 पे नहीं है।
स्टेट 3 में हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन नहीं है, 1 पे है लेकिन 0 पे नहीं है। तो DFA में सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट एवरी स्टेट ऑफ ए DFA always have exactly one existing transaction arrow for each symbol in the alphabet. समझ आ गया ना? Yes. Yes, sir. The NFA show and figure 4 violates that rule. लेकिन NFA जो figure 4 नंबर है, इसमें ये रूल्स वायलेशन है ना, ये रूल्स नहीं है ना, हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये DFA नहीं है, ये Yes, sir. NFA है। स्टेट के 1 has one existing arrow for 0 but it has 2 for 1. स्टेट के 1 जो है तो 0 के लिए एक एग्जिस्टिंग एरो है स्टेट के 1 में, लेकिन 1 के लिए 2 एरोज है। समझ आ गया ना? Q2 has जी 1 सर। arrow for 0, Q2 में क्या है? 1 arrow for 0 है but it has none for 1. Q2 में 0 के लिए एक एरो है लेकिन 1 के लिए कोई एरो नहीं Yes. है। And in NFA, a state may have 0, 1 or more existing arrows for each input symbol. NFA में क्या है? हर एक इनपुट सिंबल, हर एक स्टेट के लिए या 0 इनपुट सिंबल होगा या 1 होगा या ज्यादा होगा, लेकिन DFA में इस तरह पॉसिबल नहीं है। DFA में जितने इनपुट सिंबल्स हैं तो हर एक स्टेट पे इतने इनपुट सिंबल पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। समझ आ गया? Yes. जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं Yes, है? sir. Yes, sir. No, sir. शकीला आपको समझ आ गया? Clear, sir. शकीला, शकीला ऑफलाइन हो गया? जी जी सर, आ रही है। आपको ये समझ आ गया? जी जी सर। ओके जनाब, नेक्स्ट। ये 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, बाकी स्टूडेंट्स का कोई रिप्लाई तो नहीं आ रहा है, क्यों? रिप्लाई दे रहे हैं सर। ये यस सर। 2 खटक और 1 शकीला, ये कितने हैं ना? 2 चतराली और हैं सर। 2 चतराली, क्या नाम है चतराली का? वसीम। वसीम सज्जाद और बशारत। वसीम, आपको आवाज आ रही है? ये सर आपका आवाज तो आ रही है। मैं भी रिप्लाई देता हूँ सर, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है जनाब। यस। द इनफेक्स हार्ट कौन है? इनफेक्स हार्ट सर ये पता नहीं। हवावे 7 प्राइम 2019, ये कौन है? हवावे सर से कौन? इनके स्पीकर म्यूट है सर, उनको आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो इसको अनम्यूट करिए, ये मुझे क्यों नहीं कहते हैं? पता नहीं सर, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही होगी सर। नहीं, मेरे ख्याल में मेरी आवाज आ रही होंगी, लेकिन उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ये सर ये म्यूट जब होता है तो ना आपकी आवाज आती है ना उनकी आवाज आती है सर। Hello. स्टार्ट में मुझे भी इशू फेस हुआ था सर। तो ये अनम्यूट क्यों नहीं करते? हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा है। सर आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है सर। और कौन सा नाम क्या है आपका? जीशान सुएद। जीशान, अभी तक आ रहा था कि नहीं? यस सर, मुकम्मल आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जनाब। ये अब्दुल्ला खान कौन है? सर इनको आपकी आवाज नहीं आ रही होगी सर। अब्दुल्ला खान लेफ्ट किया सर इसने अभी। लेफ्ट किया? सर ये हाँ। मोबाइल में इशू होता है लेकिन लैपटॉप में इशू नहीं होता। हाँ, तो अब्दुल्ला खान ये मेरे ख्याल में लैपटॉप से मोबाइल से कनेक्ट है। नहीं, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। सर कोई issue ऑफलाइन नहीं हो है। गया सर, अब्दुल्ला खान ऑफलाइन हो गया सर। अब्दुल्ला ताहिरुल्लाह खटक, ये तो ऑनलाइन। इनफेक्स हार्ट हवावे 7 से ये कौन कनेक्ट है? पता नहीं सर। तो इन लोगों को कहें कि बराए मेहरबानी आप लोग लैपटॉप से कनेक्ट हो जाए ताकि स्पीड ठीक हो ना। हाँ, वो मोबाइल से तो इतना स्पीड नहीं होता है। Yes, sir. Yes. अभी 10% Yes, sir. पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबको आवाज नहीं आ रही है। ये अब्दुल्ला खान सर है, आ रही है, हमें आवाज आ रही है आपकी मुकम्मल। ठीक है जनाब। ये अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला आ रहा है आवाज? ओके जनाब। नॉन डिटरमिनिज्म। Second, an DFA labels under label under transition arrow or symbol from the alphabet. This NFA has an arrow with the label empty in general. An NFA may have arrows labeled with members of the alphabet or empty. 0, 1 or many arrows may exit from each state with the label empty. दूसरा फर्क ये है, इसका सिंपल मतलब ये है कि दूसरा फर्क ये है कि DFA में empty पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है,
लेकिन NFA में MTP ट्रांजैक्शन हो रहा हो है। हो रहा है। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी या सर। 0 पे ट्रांजैक्शन कर रहा है और अगर 0 भी ना हो तो ये MTP ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन NFA DFA में MTP ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है सही है। जनाब, हाउ डज एन NFA ठीक है, कंप्यूट? Yes, sir. NFA किस तरह कंप्यूट करता है? ठीक है, सपोज दैट वी आर रनिंग an NFA on an input string and come to a state with multiple ways to proceed. अगर हम एक NFA को रन कर रहे हैं और हम एक ऐसी स्टेट पे आ गई कि जिसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो DFA में फिर ये फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारे पास एक 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो और हम कंफ्यूज है कि हम कौन से पॉसिबिलिटी को चूज करें, तो DFA में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन NFA में ये फैसिलिटी है। अगर हम एक ऐसी स्टेट पे आ गई कि जिस स्टेट पे हम अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, हम कंफ्यूज है कि हम कौन से स्टेट पे चले जाए, तो NFA में ये पॉसिबिलिटी है कि हम एट अ टाइम मोर देन 1 स्टेट पे ट्रांजैक्शन करें, लेकिन DFA में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, फॉर एग्जांपल से दैट वी आर इन स्टेट Q1 एंड NFA N1। अगर NFA N1 है और हम स्टेट Q1 पे हैं एंड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज a 1, our next input symbol हमने 1 रीड किया। After reading that symbol, the machine split into multiple copies of itself and follows all possibilities in parallel. अगर हमारे पास मल्टीपल, हम स्टेट Q1 पे है, ठीक है, NFA N1 है हमारे पास और हम स्टेट Q1 पे है, और हम एक ऐसी स्टेट पे आ गई, इनपुट सिंबल 1 हमने रीड किया और एक ऐसी स्टेट पे आ गई कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो मशीन क्या करेगा? अगर 2 पॉसिबिलिटी है तो मशीन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी मशीन अपना 2 कॉपीज बनाएंगे। अगर 3 पॉसिबिलिटी है तो मशीन अपना 3 कॉपीज बनाएंगे। 3 कॉपीज अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो मशीन अपना 4 कॉपीज बनाएंगे, यानी मल्टी थ्रीडिंग हो जाएगा। मल्टीपल मशीन अपना एक थ्रीड्स क्रिएट करेगा और एक कॉपी स्टेट 1 पे होगा, दूसरा कॉपी स्टेट 2 पे होगा, तीसरा कॉपी स्टेट 3 पे होगा। ठीक है, तो Yes, अगर तो जो भी पॉसिबिलिटी अगर हुआ, मशीन वो वाला मशीन अपना प्रोसेसिंग प्रोसीड करेगा और बाकी कॉपीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ आ गया ना? यस सर। जी सर। Each copy of the machine take one of the possible way to proceed and continue as before. If there are subsequent choices, the machine split again. अगर let's suppose choice number 2 उसने फिक किया और choice number 2 पे again इस तरह की possibilities आ गई, तो machine again split हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. जी सर। If the next input symbol does not appear on any of the arrows existing the state occupied by a copy of the machine, that copy of the machine dies. तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि let's suppose 3 possibility है, तो मशीन क्या करेगा? 3 कॉपीज बनाएंगे। अब let's suppose हम स्टेट 1 पे है और हम कहेंगे कि अगर स्टेट 1 A आ गया तो हम ये इस तरफ स्टेट ले और स्टेट नंबर 1 पे Q1 पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर स्टेट B आ गया तो स्टेट 2 पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, अगर A आ गया तो Q1 पे ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर B आ गया तो Q2 पे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो अब क्या है? अब नॉन डिटर्मिनिज्म है ना, कि क्या आता है, 1 आता है या 2 आता है, तो मशीन 2 कॉपीज बनाएंगे, 2 कॉपीज बनाएंगे। अब अगर 1 आ गया तो मशीन 1 की तरफ ट्रांजैक्शन करेगा और कॉपी नंबर 2 लॉस हो जाएगा क्योंकि B तो नहीं आया ना। अगर B आ गया तो कॉपी नंबर 2 प्रोसीड करेगा और कॉपी नंबर 1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आ गया ना? Yes, sir. Yes. Finally, if any one of these copies of the machine is in accept state at the end of the input, the NFA accept the input string. Finally, अगर कोई भी कॉपी अपने accept state पे पहुंच गया तो मशीन इसको accept करेगा और बाकी कॉपीज तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है। डिस्ट्रॉय का। और अगर मशीन accept state को नहीं पहुंचा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, NFA के एक एग्जांपल है। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिज्म की। अब इसको देख ले, ये मशीन क्या एक्सेप्ट करता है? ये मशीन आवाज आ रही है? सब क्लियर है ना?
जी Yes, यस सर सर, यस सर, यस Yes, जी सर सर। ये मशीन इस मशीन के कितने स्टेट्स है टोटल? 1, 2, 6 है सर। 3 और 3 6। 6 कितने फाइनल 6. स्टेट्स है? 2 फाइनल दो। स्टेट फाइनल 2 है सर। शकीला इसके इनपुट अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? सर MT दोनों साइड पे जो MT है सर यही है सर। इनपुट अल्फाबेट्स सर 0 सर M2 और 0 है सर। M2 और MT 0 0 सर। M2 0 इसके 2 इनपुट अल्फाबेट्स है। ठीक है, ये मशीन Yes. क्या Yes, sir. एक्सेप्ट करेगा? तवज्जो से सुने। ये Yes, मशीन लेट्स सपोज MT इसको एक्सेप्ट किया, तो ये मशीन सबसे पहले ट्रांजैक्शन करेगा दोनों एक्सेप्टिंग स्टेट पे। अब ये क्या एक्सेप्ट sir. करेगा? ये सिर्फ एक 0 एक्सेप्ट कर सकता है शकीला? Yes, sir. 1 Two. 0 एक्सेप्ट कर सकता है? 1 0 1 0 सर 0 0 एक्सेप्ट करेगा सर। नहीं, सिर्फ एक 0 एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ एक 0। यस यस सर। किस तरह? नो सर 1 मिनट सर। नो सर। 2 0 को एक्सेप्ट कर सकता है, यस जी, sir. सर। 3 0 को एक्सेप्ट कर सकता है, जी सर 3 0 यस सर। 4 0 को एक्सेप्ट कर सकता है। 1 1 मिनट सर। नो सर 4 0 नो सर। 4 0 ऊपर वाला देख ले। 1 मिनट 1 2 3 4 यस सर। 4 0 एक्सेप्ट कर कर सकते सकता हैं है। खटक साहब ये 5 0 को एक्सेप्ट कर सकता है? 5 0 1 2 3 4 5 नो सर 1 2 3 4 5 ये फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा सर। हाँ, 5 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। 6 0 एक्सेप्ट कर सकता है? यस सर यस यस सर सर यस 6 तो कर सकता है यस सर। ठीक है। 7 0 एक्सेप्ट कर सकता है? 7 1 2 3 4 5 6 7 नो सर 9 8 सर 0 एक्सेप्ट कर सकता है शकीला? 8 पे एक्सेप्ट यस करेगा सर। सर। 9 यस नो 9 9 ये देख फिर ले। फाइनल स्टार्ट में नहीं जाएगा। 9 पे कर सकता है 1 9 पे हो 2 सकता है सर 3 4 5 6 7 8 9 नो सर। 9 कर सकता है शकीला? किस तरह नहीं? नीचे वाला देख ले। अच्छा नीचे वाला कर रहा ये है सर सेकंड ये सर कर सकता है सेकंड कर सकता है। 1 9 2 वाला कर 3 सकते हैं। 4 तो 5 इसका 6 7 8 9 ये सर कर सकता है। कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? जो मल्टीपल ऑफ 2 हो या मल्टीपल ऑफ 3 हो। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? 2 4 6 8 10 4 6 8 8 10 12 Yes, sir. 14। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है? ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मल्टीपल ऑफ 2 एक्सेप्ट कर रहा है, और नीचे वाला पोर्शन मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल Multiple ऑफ of 3 मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 का 3 मतलब 6 3 9 12 6 9 12 15 18 20 18 21 24। तो ये 24 मशीन क्या etc. एक्सेप्ट करता है? मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट करता मल्टीपल है। ऑफ 3 ठीक है, तो ये NFA है। NFA सबसे पहले ये NFA इसलिए है कि इसने MT पे ट्रांजैक्शन किया है। अब पता नहीं है, Yes, sir. यानी हमने एक मशीन बनाया है मल्टीपल जो कि मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमको तो पता नहीं है मल्टीपल ऑफ 2 भी आ सकता है और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ भी। सकता है। तो ये मशीन sir. डिवाइड होगा 2 कॉपीज में। एक कॉपी, दोनों कॉपी इसको चेक करेंगे। ठीक है, 2 कॉपीज में मशीन 2 कॉपीज में डिवाइड हो गया। तो अगर मल्टीपल ऑफ 2 ने मल्टीपल ऑफ 2 अगर आ गया तो ऊपर वाला कॉपी जो है तो इसको एक्सेप्ट करेगा, और नीचे वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। यस सर। यस सर अब अगर मल्टीपल ऑफ 3 मशीन 2 कॉपीज में डिवाइड हो गया, अब मशीन को 2 कॉपीज में डिवाइड करे, जहन में डिवाइड करे, तो अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, 2 जीरोस आ गई, तो ऊपर वाला पोर्शन एक्सेप्ट करेगा और नीचे वाला पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होगा एक्सेप्ट अगर नहीं मल्टीपल ऑफ करते 3 आ गया, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो नीचे वाला पोर्शन एक्सेप्ट करेगा Accept और होगा। ऊपर वाला पोर्शन और ऊपर वाले डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। हो गए सर। डिस्ट्रॉय नहीं हो करेगा। जाएगा। तो ये NFA की खूबसूरती है और इसके पावर है। DFA इस तरह एक्सेप्ट कर सकता है? नो सर वो 0 और 1 DFA Zero. नहीं कर MT सकता पे है ट्रांजैक्शन direct। नहीं हो सकता सर DFA में। नहीं कर सकता। हाँ, हम DFA भी कर सकता है, इस तरह नहीं। हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन मुश्किल है। डायरेक्ट हम DFA अगर इसके लिए बनाए ना, डायरेक्ट अगर DFA बनाए तो मुश्किल है। तो सबसे पहले हम फिर इस NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी एक बात जहन में याद रखें कि पावर जो है तो ये NFA और DFA के बराबर है। पावर
बराबर है, NFA और DFA की पावर बराबर है, लेकिन DFA मुश्किल है ड्रा करना, इसके लिए मुश्किल है डायरेक्ट। फिर हम इस तरह करते हैं कि NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि NFA के कुछ अपने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसलिए फिर हम इसको DFA में कन्वर्ट करते हैं। और जो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर प्रैक्टिकल हम DFA इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, NFA इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन है? No, sir. Oh, sir. क्लियर है? Yes, Okay, sir. next. Example, we give another example of NFA and the following figure practice with it to satisfy yourself that it accepts the string empty, BA, BA and B double A, but it does not accept the string B double B, BA double BA. अब ये NFA को देखें, ये NFA है या DFA है? NFA है सर, NFA. इस तरह शकीला क्यों NFA है? दो ट्रांजैक्शन होते हैं सर। शकीला ये NFA है या DFA? एक है। Sir, NFA. क्यों? दो बातें हैं, बस एक तो इसमें Empty एम्प्टी ट्रांजैक्शन है, transaction. एम्प्टी ट्रांजैक्शन है, Empty transaction, sir. तो इसके वजह से ये पता है कि ये NFA है। बाकी स्टेट्स को देखे, क्या वन स्टेट को अगर देखें तो क्या वन स्टेट ने B पे ट्रांजैक्शन किया है लेकिन A पे ट्रांजैक्शन नहीं किया है, क्या वन ने? Yes, sir. तो A पे Yes, ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजैक्शन नहीं है ना, जब हर एक इनपुट Yes, सिंबल पे yes, ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये NFA है। Q3 को देखें, Q3 ने A पे ट्रांजैक्शन किया है Q3 ने, लेकिन B पे ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या है? NFA है। NFA है। NFA. अब ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ये सिंपल 1A को एक्सेप्ट कर रहा है, 1A। नो सर, क्यों? नो सर, No, सर ये B पे मूव करेगा। 1A को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं शकीला? 1. सिर्फ एक A को। Yes, sir. नहीं करेगा सर। Q3 फिर A. शकीला 1A नहीं को समझ आई एक्सेप्ट कर, शकीला 1A को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? आप ठीक कह रहे हो, बोर्ड बताइए Sir, 1A. Yes, sir. किस तरह? सर ये Q2 Q1 की तरफ मूव कर रहा है ना, ये empty से फिर Q3 और फिर हाँ सर ठीक है ना, कंफ्यूजन। कंफ्यूज नहीं, ये क्लियर करें। ये सर हो गया एक्सेप्ट कर रहा है 1A को। किस तरह? सर ये Q2 पे 1 वो ट्रांजैक्शन है ना, अच्छा सर फाइनल स्टार्ट पे नहीं है, समझ नहीं आई सर, मैं कंफ्यूज हो गई। 1A को एक्सेप्ट कर रहा है खटक साहब? जी सर, जी सर। अभी एक्सेप्ट कर क्लियर रहा हो है गया कि सर। नहीं? जी सर, एक्सेप्ट कर रहा है सर। किस तरह? सर ये Q1 से empty पे Q3 की तरफ जाएगा और Q3 से दोबारा फिर फाइनल स्टेट पे A पे ट्रांजिशन करेगा सर, तो Very A good. एक सिंगल A भी एक्सेप्ट करेगा सर। गुड, क्योंकि ये मशीन शकीला देख ली, ये मशीन जो है जी जी। तो ये जब Q1 पे आएगा तो Q1 पे ये ऑटोमेटिकली Empty. एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन करेगा Q3 को। तो अब एट ए टाइम जब अच्छा, मशीन सर। स्टार्ट लेता है तो एट ए टाइम मशीन दो स्टेट्स पे है, Q1 पे है जी, जी। और ऑटोमेटिकली एम्प्टी पे इसने ट्रांजैक्शन किया है, Q3 पे भी है, तो Q3 पे भी है जी, सर। ऑटोमेटिकली, Q1 पे भी है, तो जब A देख लिया तो Q3 से Q1 की तरफ आएगा और एक्सेप्ट करेगा। यस जी, सर, सर। समझ आया। अब अगर B सिर्फ एक B को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? एक B को नो सर। नो सर, फाइनल No. स्टेट की तरह ये तो मूव नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। BA को शकीला ये BA को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? B और A। नो सर, A तो कर रहा है लेकिन B को नहीं कर रहा। B पहला B फिर B और इसके बाद A एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं? नो B- सर, नो सर, तो फिर नहीं सर, हाँ, नो नहीं सर, कर रहा सर। BA एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। कि B पे ये फाइनल Q2 स्टेट की तरफ नहीं जा रहा सर। नहीं, Yes, State. सर, BA हाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि B पे ये Q2 की तरफ आ गया, फिर A पे जब Q2 BA पे एक्सेप्ट किया, जब BA हमने दे दिया तो मशीन का कंट्रोल किधर है? BA दे दिया तो मशीन का कंट्रोल किधर है शकीला? BA। अब BA जब हमने दे दिया तो मशीन का कंट्रोल किस स्टेप पे है? सर Q2। और Q3 पे नहीं है।
سر یہ Q2 پہ ملٹیپل کاپیز بنائے گا, ایک Q3 کی طرف چلی جائے گی اور ایک Q2 پہ ہی رہے گا سر. 2 copies. ہاں 2 کاپیز ہے. تو جب ہم نے بی دے دیا, بی اے دے دیا, تو مشین کا کنٹرول Q2 پہ بھی ہے اور Q3 پہ بھی ہے. بی Yes sir. اے, تو اے پہ Q2 نے بھی ٹرانزیکشن کیا اپنی طرف, اور Q2 نے Q3 کی طرف بھی ٹرانزیکشن کیا. جی سر. اب بی ڈبل اے ایکسپٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ بی ڈبل اے جی سر ڈبل اے نو ایکسپٹ سر. کر رہا ہے سر. Yes sir, accept کر رہا ہے کیونکہ یہ فائنل اسٹیٹ کی طرف موو کر رہا ہے. یہ فائنل اسٹیٹ پہ جائے گا سر. بی ڈبل اے کو ایکسپٹ کر رہا ہے. بی سنگل اے یس سر کر رہا ہے. سنگل اے پہ Q2 سے Q3 کی طرف آ گیا, اور پھر دوسری اے پہ Q3 سے Q1 کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے. ایٹ ایکسپٹ دا اسٹرنگز اے, بی اے کو ایکسپٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ بی اے یس سر کر رہا ہے. یس سر کر رہے ہیں. بی اے بی کو کر رہا ہے. بی شکیلہ Yes, کر رہا sir. ہے یا جی سر ایکسپٹ کرے گا سر. شکیلہ سے میں سننا چاہتا ہوں, وہ کر رہا ہے؟ Yes sir. بی اے اور بی اے بی اے اس کی 2 copies بن رہا ہے. کر رہا ہے. بی Yes sir. بی سے اے کی اور طرف آ گیا. ٹھیک ہے. اب مشین کی 2 کاپیز بن گئی, تو ایک اے نے Q2 پہ چلا گیا, دوسرا اے Q3 کی طرف گیا نا, تو 3 کی طرف. Yes sir. ایکسپٹ کر رہا ہے. آپ لوگ تو بور تو نہیں ہوئی نا؟ ہیلو جی نہیں سر. سر. آپ لوگ بور تو نہیں ہوئی ہے نا؟ بور تو نہیں ہے؟ نہیں سر بور نہیں ہوئے سر. ٹھیک ہے, کیوں میں تو آپ لوگوں کو دیکھ بھی نہیں رہا, ہو سکتا ہے آپ لوگ چائے وغیرہ پیتے رہتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے نا. نان ڈیٹرمنزم, فارمل ڈیفینیشن آف اے نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا. تو ہم ٹیکسٹ کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. تو نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا اور ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا میں کیا فرق ہے؟ اب آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ گیا کیا فرق ہے؟ شکیلہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ نہیں سر. فرق صرف اس کی ٹرانزیکشن میں آ گیا, صرف ٹرانزیکشن میں آ گیا نا خٹک صاحب؟ جی سر. صرف ٹرانزیکشن میں اس کا فرق آ گیا. یعنی اگر پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو ڈیٹرمنسٹک ڈی ایف اے میں ہمارے پاس کیو اور سگما سے ہم ان پٹ لے رہے تھے, ایک کیو اسٹیٹ پہ تھی اور سگما سے ہم ان پٹ لے رہے تھے, اور ہم ایک اسٹیٹ پہ ٹرانزیکشن کر رہے تھے, اونلی ون اسٹیٹ پہ. جی سر. اس طرح تھا نا. اور ہم ان پٹ صرف سگما سے لے رہے تھے, باقی ہمارے پاس کوئی ان پٹ نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ صرف سگما میں اگر اے اور بی ہے تو ان پٹ ہمارے پاس صرف اے اور بی تھے. لیکن ادھر ڈی ایف اے این ایف اے میں کیا ہے؟ این ایف اے میں ہمارے پاس ایم ٹی بی ہے. تو اگر آپ لاسٹ لائن کو دیکھ لینا, لاسٹ لائن کو ٹرانزیشن کیو ملٹیپلائی بائی سگما ایم ٹی ٹینس ٹو پی کیو, لاسٹ لائن کو لاسٹ ورڈ کو دیکھ لینا. جی سر. تو اس میں صرف یہ فرق ہے. ادھر ہم صرف سگما لکھ رہے تھے, مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان پٹ صرف سگما والے تھے, سگما میں یا اے ہے یا بی ہے. لیکن ادھر ہم سگما کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ ایم ٹی بھی ہوگا سر. تو ان پٹ الفابیٹس ہمارے پاس سگما ہوگا, یعنی سگما میں جو ہے, اور سگما کے ساتھ یونین میں کیا ہوگا؟ ایم ٹی. آپ لوگ سیکنڈ لاسٹ لائن کو دیکھیں, سیکنڈ لاسٹ لائن میں ایم ٹی ہوگا. جی سر. For any alphabet sigma we write sigma empty to be sigma union empty. تو ان پٹ الفابیٹس ہمارے پاس ادھر کیا ہے؟ سگما والا جو ان پٹ ہے, یعنی سگما میں اے ہے یا بی ہے, اے بی ہے یا اے بی سی ہے, پلس ہمارے پاس کیا ہے؟ empty ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہم ٹرانزیکشن کر رہے تھے تو ہم صرف کیو کو ٹرانزیکشن کر رہے تھے, ایک اسٹیٹ کو. سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی سر. اور ادھر ہم پی کیو کو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. پی کیو کا ٹرانزیکشن کیا مطلب ہے کہ پاور آف کیو, یعنی اگر 2 اسٹیٹس ہیں تو ہم 4 اسٹیٹس کو دونوں اسٹیٹس کو ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اگر 3 اسٹیٹس ہیں تو ہم تینوں اسٹیٹس کو ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟
Yes, sir. जी यस सर सर तो इधर हम मल्टीपल स्टेट्स को एट ए टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक इनपुट सिंबल पे। और डीएपे में हम सिर्फ एक स्टेट को ट्रांजेक्शन कर रहे थे एक इनपुट सिंबल पे। जी सर तो सिर्फ ट्रांजेक्शन फंक्शन में हमारे पास चेंजेस आ गई, बाकी हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो अब इधर देख ले, तो डीएपे भी एनएपे भी 5 टुपल हो गया ना। जी सर ठीक है, 5 टुपल में क्यों? एज ए फाइनाइट सिर्फ इसका सर सिर्फ ट्रांजिशन सर। फंक्शन चेंज हुआ, बाकी बिल्कुल सर बाकी सेम है। सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन सेम हुआ, चेंज हुआ। ट्रांजिशन Change फंक्शन हो में चेंज हो गई। अगर ये डीएफए में अगर इस ट्रांजिशन फंक्शन को आप ट्रांजिशन फंक्शन 3 नंबर पे है ना। Yes, Yes, sir. sir. 3. जी सर हाँ खटक साहब, तो आप इसको अगर डीएफए के लिए कन्वर्ट करें, ये 3 नंबर डीएफए, अगर हम इसको डीएफए बनाते हैं तो क्या चेंजेस करेंगे इस ट्रांजिशन में? सर ये एम्प्टी सेट वो कर देंगे। सर ये Empty एम्प्टी हटा देंगे सर। और दूसरा पावर ऑफ क्यू जो है सर Power of Q. तो पावर ऑफ yes, क्यू sir. दोनों हटाएंगे शकीला, Yes, sir. सिर्फ पी हटाएंगे ना, क्यों तो छोड़ेंगे। Yes, sir. Q तो नहीं हटा। हाँ, ये क्यों क्यों तो तो वही है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हो गया इसका कि ये इनपुट सिंबल में एमटीबी लेता है और डीएफए में ये पावर डीएफए में हम सिर्फ एक स्टेट को यानी सिर्फ क्यू को ट्रांजैक्शन कर रहे थे और ट्रांसमिशन कर रहे थे या ट्रांजिशन कर रहे थे। एनएफए में हम मल्टीपल स्टेट्स को ट्रांजिशन कर सकते हैं। कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, एक्सपीरियंस आप एनएफएस एंड डीएफएस। आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोग इस पे हद्दुल वसा जोर लगा के कोशिश करें कि एनएफए को डीएफए में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग सही। माशाल्लाह बैचलर या मास्टर करके आए हैं, अभी आप लोग मतलब एमफिल की स्टूडेंट्स हैं, तो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग ये इसको वो करें कि एनएफए को डीएफए में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर डिस्कस नहीं किया है और ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा है कि आप लोग एक या 2 एग्जांपल्स आप लोग कर ले। ठीक है, जी सर क्यूडी पे एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। सही है सर। सही है। देखना डिटर्मिनिस्टिक, अब देख ले वो टेक्स्ट को। डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज द सेम क्लास ऑफ लैंग्वेजेस, सच इक्विवेलेंस इज बोथ सरप्राइजिंग एंड यूजफुल। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि एनएफए थोड़ा इजी है, अंडरस्टैंड करने में इजी है और ये ड्रा करने में इजी है, लेकिन हर एक लैंग्वेज जो एनएफए रिकॉग्नाइज कर सकता है वो डीएफए भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। और एट द एंड जब हम एनएफए और डीएफए को प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एनएफए को डीएफए में ही कन्वर्ट करके इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज एनएफएस अपीयर टू हैव मोर पावरफुल देन डीएफएस, so we might expect that NFA recognize more languages. It is useful because describing an NFA for a given language sometimes is much easier than describing a DFA for that languages. तो जिस लैंग्वेज के लिए हम DFA बनाते हैं तो ये आसान है कि हम इसके लिए NFA बनाई, ठीक है, लेकिन फिर वापस वो NFA हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। So that two machines are equivalent if they recognize the same language. Two machines पावर में जो है तो वो बराबर है। ठीक है, लास्ट यस सर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना सर? बहुत हो गए। हाँ बहुत हो गया, तो इंशाल्लाह रेगुलर स्पेशल आज के लिए क्लास में काफी। डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर और इस लेक्चर को हम शेयर करेंगे, आप लोग फिर अपने आईडी से अकाउंट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यस ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, Thank you, sir. ओके जी, अल्लाह।